students, this is Priyanka Sharma and today in our class of statistics we will discuss about chapter 2nd. Chapter 2nd which is consist of these topics. First is introduction, second is meaning, third is functions, importance and limitations. Okay, so today we will talk about these two topics only. First is introduction and second one is meaning. Introduction. The word statistics conveys different meaning to different people. Some people regards statistics as data while other people it to be the study of figures. So different views are different from different peoples regarding to states. अलग अलग लोगों का स्टैटिक्स के लिए अलग अलग मानना है. कुछ ने कहा स्टैटिक्स एक डाटा है, कुछ ने कहा स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ फिगर्स. लेट्स सी फॉर क्रिकेट फैन, अगर कोई क्रिकेट का फैन है तो उसके लिए स्टैटिक्स क्या है? डाटा रिलेटिंग टू द रन्स बाय अ क्रिकेटर. इट्स ओनली अ डाटा रिलेटिंग टू द रन्स बाय अ क्रिकेटर. नेक्स्ट एन एनवायरमेंटलिस्ट, अगर कोई एनवायरमेंटलिस्ट है तो उसके लिए ये इंफॉर्मेशन है किस ऑन द क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की क्वांटिटी के बारे में ये इंफॉर्मेशन बताता है. क्या? स्टेट्स. अगर कोई वेदर डिपार्टमेंट से है तो वेदर डिपार्टमेंट के लिए स्टैटिक्स रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन अबाउट मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर. सो फॉर द वेदर डिपार्टमेंट इट रिफर्स द टेम्परेचर, minimum and maximum temperature. So in a common view we can say that it's numerous. Statics is numerous, but it's not a complete view of states. It's not a complete view of states, but because जो स्टैटिक्स है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं बताती. इट्स नॉट रिलेटेड विद द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स. इट्स रिलेटेड विद क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आल्सो. सो व्हाट आर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स? लेट्स सी. क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिक टर्म्स. Quantitative means these variables express the quantity. So this can be expressed in numeric term, just as marks of students we can express it in numeric terms and height of people, right? Now in the other hand, qualitative variables can't be expressed in numeric terms. This type of variables can't be expressed in numeric terms, such as honesty. क्या आप honesty को numeric term में बता सकते हैं? 1 honesty, 2 honesty, 3 honesty? No, we can't determine it in numeric terms. Then intelligence is also can't determine in numerical terms. So these variables, qualitative variables, not statics unless we assigned it in numerical forms. ये तब तक statistics नहीं है जब तक कि हम इन्हें assign नहीं करते. किसमें assign नहीं करते? numerical forms में. ओके, तो ये statistics कब कहे जाएंगे? क्वालिटेटिव वेरिएबल जब हम इन्हें असाइन करेंगे न्यूमेरिक फॉर्म में. एक एग्जांपल के लिए लें, जैसे हाइट. इज हाइट अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल? नो, हाइट इज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल, बट व्हेन वी असाइंड इट इन डिफरेंट हाइट्स सच एज 150 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर्स. Okay, so when we assigned it in a quantitative form, it will be called a quantitative variables. Move on to the meaning of statistics. Statistics का meaning different writers ने different time पर अपने according दिया. Mainly इसे 2 parts में divide किया गया. First is plural sense and another one is in singular sense. Okay, plural sense and singular sense. Plural and singular sense. In the plural sense, statistics is a numerical information. States क्या है? एक numerical information है plural sense में. Okay, and in the singular sense, it's the method of dealing with numerical facts. ये एक method है. Singular sense में
स्टैटिक्स एक मेथड है, कौन सी मेथड है जो डील करती है किससे, न्यूमेरिकल फैक्ट से, राइट. सो numerical information in the plural sense, it's a numerical information. For example, aggregate percent of passed student in a class. So is percentage is a numerical value. Percentage एक numerical value है. Yes, it's a numerical value. So it is a numerical information in the plural sense, right? Okay. In the plural sense, the characteristics of states are, there are the important characteristics in the plural sense, and it is the most important question from the examination point of view. Characteristics of states are, we will see one by one. Okay, first is aggregates of facts. Aggregates of facts means states is a aggregate of facts. For example, if I write here 20 years, if I write here 20 years, tell me, is it a static value? क्या ये एक statistic value है 20 years? No, it's not a statistic value, because एक नंबर, सिर्फ एक सिंगल नंबर स्टैटिक्स वैल्यू नहीं हो सकता. अब ये स्टैटिस्ट वैल्यू कब होगा, जब हम एक ग्रुप लेंगे. we will take a group of persons having different ages. Okay, it's statistical data, right? Now come to the second, affected by multiplicity of causes. States affected by multiplicity of causes. How? Let's see an example. Suppose in the production of rice, there are so many factors which affected the production of rice, such as rainfall, we can say rainfall, or fertilizers, or the techniques of agriculture. There are so many factors which affect the production of rice. So it is not possible in statistics to find out the effect of one particular factor. ये बहुत मुश्किल है कि फाइंड आउट करना इतने सारे फैक्टर्स में से ये फाइंड करना कि एक पर्टिकुलर फैक्टर का कितना इफेक्ट पड़ा है राइस की प्रोडक्शन पे. इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड. सो इट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, राइट. नेक्स्ट वन इज numerically expressed. Its data is always numerically expressed. We see the example here that height is not a numerical data, but when we add numerical in it will be converted into quantitative data. So we'll always express is numerically. Okay, collected with reasonable standard of accuracy. The data will always be collected with reasonable standard of accuracy. अगर हम accuracy के साथ डाटा को कलेक्ट नहीं करेंगे तो उसकी जो रिलायबिलिटी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. सो इट इज नेसेसरी टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, राइट. नेक्स्ट वन इज कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस. प्री डिटरमाइंड पर्पस होना बहुत ज़रूरी है डाटा के कलेक्शन के लिए. वाई? सपोज कि हमने कोई भी जो पर्पस है पहले से फिक्स नहीं किया, पहले से डिसाइड नहीं किया और डाटा का कलेक्शन स्टार्ट कर दिया, तो इट विल बी यूजलेस. ये कोई भी यूज नहीं रखेगा, फिर इसका कोई यूज नहीं होगा, इसकी यूजफुलनेस जो है वो खत्म हो जाएगी, यूजलेस होगा. सो प्री डिटरमाइंड पर्पस डाटा के कलेक्शन के लिए होना ज़रूरी है. पहले से हमें पर्पस डिसाइड करना होगा कि हम क्यों डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, आखिर हमारा इंटेंशन क्या है, राइट. सॉरी. कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर. एक सिस्टमैटिक मैनर में डाटा का कलेक्शन होना ज़रूरी है. अगर सिस्टमैटिक मैनर में नहीं होगा तो भी डाटा हमारा यूजफुल होगा, वो पूरा यूजलेस होगा सिस्टमैटिक मैनर में अगर डाटा नहीं होगा. नेक्स्ट, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर. प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर. जो डाटा है वो रिलेटेड होना चाहिए. सपोज कि हम
कंपैरिजन करना चाहते हैं, हम एग्रीगेट हाइट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि पर्सन, सपोज यहाँ पे हमने अगर पर्सन और ट्रीज की हाइट ले ली, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर दिस टू थिंग्स, तो प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, डाटा हम ऐसा लें जो रिलेट करता हो एक दूसरे से. ओके, नाउ मूव ऑन टू द सिंगुलर सेंस. What is singular sense? It refers to the methods of dealing with numerical facts. Singular sense क्या बताता है? Methods बताता है, different methods बताता है, किस लिए? Numerical facts से deal करने के लिए. Okay, so what the methods are? It is all about COPI. It is all about COPI. Collection, C for collection, O for organization, P presentation, A analysis, and I interpretation. Let's see the first one, collection. Let's see one example for the collection. Suppose कि आपकी क्लास 11th में टोटल 90 स्टूडेंट्स हैं, तो 90 स्टूडेंट्स का यहाँ पर क्या हुआ? कलेक्शन, राइट. नाउ सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कह सकते हैं? क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं. क्लासिफिकेशन, ओके, क्लासिफिकेशन. सो सपोज यहाँ कलेक्शन हुआ, कलेक्शन के बाद उसका क्लासिफिकेशन हुआ 90 स्टूडेंट्स का, तो एक क्लास में 90 स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं है. 90 स्टूडेंट्स को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया, तो 1 क्लास में कितने स्टूडेंट्स हुए? 30. तो 30 स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ. आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन इट रिफर्स टू द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. अब वो प्रेजेंटेशन किस फॉर्म में हो सकता है? प्रेजेंटेशन वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, टेबल के फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिकल फॉर्म में भी हो सकता है. ओके, टेक्स्ट, टेबल और ग्राफिकल फॉर्म में जो हमारे पास डाटा हमने कलेक्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है, उसका प्रेजेंटेशन होगा. नाउ एनालिसिस. अब एनालिसिस में क्या होगा? जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि उनका परफॉर्मेंस कैसा था, है ना, उनके मार्क्स कैसे थे, उनने कौन से टेस्ट में उन्हें कितने मार्क्स मिले, उन्होंने कितना अचीव किया, तो ये परफॉर्मेंस उनकी एनालिसिस में देखी जाएगी. हमने एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल के थ्रू हम इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे टर्म्स को समझने की कोशिश करें. लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन. अब इंटरप्रिटेशन में क्या होता है? कंक्लूजन होता है. हमारा ये जो सारी मेथड्स हैं, है ना, इन सारी मेथड्स में ये जो सारी प्रोसेस हुई, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस, इसका कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला? इंटरप्रिटेशन में हम कंक्लूजन देखते हैं. ओके, सो this is all about the introduction and meaning of statistics. In our next class we will see the functions, importance and limitations of states. Okay.